next sentence. What variable? Variable is a container having some values. Yes, variable is a container having some values. Okay. What kind of values we can store in a variable? What type of value we can store in a variable? Yes, Aditya, Divya, Khushi, Payal, Prachiti, Rishika. What kind of, or we can say what? It is number of characters. Yes, number. Very good. And character. Yes, Divya, Himanshu. Character. Yes, Prachiti. We can store number. We can store character. Number. Yes. Yes. Character. We can store Prachiti. Yes. Yes. After that, नंबर स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और क्या स्टोर कर सकते हैं? फ्लोट वैल्यू. कैन वी स्टोर डेसिमल वैल्यू गाइस? Yes, right. So we can store a decimal value, and we can store a collection of character. It is called as a string. So number, collection of character, single character, and decimal value. So that we can store inside a variable. So we have one another type which is called as a boolean. Okay, so we have a boolean variable. सो बुलियन क्या होता है? बुलियन एक ऐसा टाइप का वेरिएबल होता है या ऐसा टाइप होता है जिसमें आप ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज बुलियन. So we have a number, we have a collection of character, we have a single character, decimal value, and we have a boolean. So that is the five types data types we have. So that is data type. So type of data present in variable. It is called as data type. Then we have seen data type conversion, right? So what is my data type conversion, guys? Conversion one data type to another data type. Yes, Himanshu, Usi, Payal, Prachiti, Rashika. What is meant by data type conversion? Yes, guys, what is mean by data type conversion? Converting one data type into another. Yes, converting one data type into another. Okay, so that is all. That is what we have seen. Okay, so whenever we take, जब भी हम input लेते हैं from runtime, whenever we take input from runtime, right? So which method we have to use for taking input? हमने input देखा, right? How to take input from console, right, guys? Divya, Santanu, Prachiti. So which method we have to use? Which method is being used for the taking input at a runtime? Yes, Santanu, Kushi, बताइए. Which method is used for the taking input from user at a runtime in Python? Input method, right? Input. Yes, guys. Which method is used? Everyone, Input. Input method. right? So whenever we take input from user, तो जो input आता है वो किस टाइप में आता है? Yes, String. string में आता है ना. तो जब भी हम input लेंगे, whenever, always remember, okay? So whenever you take input from user, it will always come in the type of, in which type it will always come? Yes, guys, बोलो. In which type it will come? String. String, right? Yes, String. guys, everyone agree? It will come in the form of string. Yes, guys, सब Yes. agree करते हैं. तो अगर मुझे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, इफ आई वांट टू डू सम अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो मैं जो नंबर ले रहा हूँ वो नंबर भी किस फॉर्म में आएगा, किस टाइप में आएगा? मुझे अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है, राइट, इफ आई वांट टू डू सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो मैंने दो नंबर ले रहा हूँ फ्रॉम इनपुट फ्रॉम यूजर. तो मैंने दो नंबर लिए इनपुट. अब वो नंबर भी किस टाइप में आएंगे? नंबर भी किस टाइप में आएंगे? स्ट्रिंग में आएंगे. यस गाइस, समझ में आ रही है बात Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ मैं? पायल, दिव्या, ऋषि, शांतनु, ऋषिका, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो आप नंबर भी लोगे तो नंबर भी किस फॉर्म में, किस टाइप में आएगा? यस, बताइए. String. स्ट्रिंग में आएगा. तो स्ट्रिंग के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो क्या? जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो स्ट्रिंग के ऊपर होते हैं, वो कर सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर. कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो ओनली नंबर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो. बताइए. नंबर्स के ऊपर. नंबर्स के ऊपर ना. तो जब भी हम इनपुट लेते हैं फ्रॉम रन टाइम, तो अगर वो स्ट्रिंग में आता है, तो अगर हमारी हमारा जो एप्लीकेशन है, जो भी हमें करना है, तो उसके हिसाब से हमें टाइप तो मिल नहीं रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है, हमें चाहिए नंबर, तो हमें वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा.
ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग से ही नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को नंबर में कर सकते हो, नंबर को फ्लोट में कर सकते हो। यू कैन डू सम रियल टाइप कन्वर्जन्स व्हिच वी हैव सीन। देन हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट, सो इफ, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड मैच केस, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। आज हम देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। Today we are going to use go and discuss a looping statement. It will be very like guys simple session, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होगा, और हम धीरे धीरे सारी सारी चीजें जो है वो वर्कआउट करेंगे। एज यू हैव एज वी हैव डिड इन जावा, तो जावा यहाँ पाइथन से बहुत ही डिफिकल्ट होती है इनिशियल लेवल पर समझने के लिए, पर आपको अगर जावा के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। So that is Java is very important to do first. Okay guys, we'll start for the looping statement and we will solve some questions on that. देखो सारे कंसेप्ट तो सेम ही होगी, एवरी कंसेप्ट विल बी सेम हियर, बट व्हाट विल चेंज, ओनली सिंटैक्स विल चेंज। सिंटैक्स का मतलब होता है द वे यू विल राइट द कोड, द वे यू हैव बीन राइटिंग द कोड, इट विल चेंज, रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो समझा के नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू कि हमारा सारा हो चुका है, अब आई विल नॉट एक्सप्लेन यू कि किस तरह से काम करता है। ओके, इट विल नॉट लाइक दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, fine, guys. Let's start. And if you have any kind of problems, guys, whenever I explain something, अगर आपको समझ में नहीं आता है, okay, तो you can ask me. Don't hesitate to ask anything, because अगर आपको समझा नहीं तो आगे वाले जो टॉपिक्स है वो आपको प्रॉब्लम जाएंगे। ओके, सो इसीलिए अगर आपको कुछ नहीं समझता है, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, ओके, वी विल सो आई हैव गिवन यू दिस नोट्स टू यू। आपने पढ़े क्या ये? तो जो भी रेगुलर नोट्स हम निकालते हैं, मैं आपको ग्रुप के ऊपर वो जो है वो भेजता रहूँगा, ताकि आपको टॉपिक्स भी समझते हैं। नोट्स देखोगे तो समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ें हमने देख रखी है, तो उसी हिसाब से हम जो है आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड टॉक अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट, कि लूप होता क्या है, क्यों यूज करना पड़ता है, सारी चीजें हमने देखी है, एवरीथिंग वी हैव सीन, बट स्टिल वी विल गो फॉर द शॉर्ट इंट्रोडक्शन और प्रीव्यू कि किस तरह से होता है, क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग लूप। तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि सेम लाइन जो है हमें रिपीट करना पड़ता है, वी हैव टू रिपीट अ सेम लाइन। ओके, यानी इफ आई वांटेड टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम, सो आई हैव टू राइट द प्रिंट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन 10 टाइम, राइट। अगर मुझे हेलो वर्ड जो है 10 टाइम लिखना है, सो टुडे आवर टॉपिक इज कंडीशन सॉरी लूपिंग स्टेटमेंट। Okay, and looping statement is also called as iterative statement, iterative statement। yes guys, screen visible है आपको, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? yes everyone, Yes, sir. Yes, sir. लूपिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है लूपिंग स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेट का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। इटरेट का मतलब क्या होता है? जो हम रिपीटेडली करते हैं। ओके, रिपीटेशन, इट इज कॉल्ड एज रिपीटेशन। जब आप रिपीट करते हो कुछ, व्हेन यू रिपीट समथिंग, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन को बोलते हैं हम इटरेशन। व्हेन यू रिपीट समथिंग, सपोज आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप कुछ याद रखने की कोशिश कर रहे हो, सपोज यू हैव सम पैराग्राफ और आप उसको याद करने की कोशिश कर, तो आप उसको रिपीटेडली पढ़ते हो बार बार, तो वही होता है रिपीटेशन, और रिपीटेशन को बोलते हैं इटरेशन। सो व्हाई वी आर लूपिंग, व्हाई वी आर यूजिंग अ लूप, तो व्हाई इसको समझते हैं कि हमें जरूरत क्या है लूप यूज करने की, व्हाई टू यूज लूप। ठीक है, लूप क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हमें हमेशा क्या है, हमेशा ध्यान में रखना, आपको सेम लाइन अगर आपने लिखा है, इफ यू हैव रिटन पर्टिकुलर लाइन, तो उसको आपको बार बार नहीं लिखना है। आपको हर जो भी लाइन आप यूज लिखा है, ओके, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, तो आपको वो रियूज करना है। गो फॉर रियूजिबिलिटी ऑफ कोड, एवरी टाइम यू विल गो फॉर रियूजिबिलिटी ऑफ कोड, नॉट फॉर रीराइटिंग। रीराइट नहीं करना है, रियूज करना है। तो सपोज जस्ट जस्ट टेक एग्जांपल, सपोज अगर मुझे जस्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ आई वांटेड टू प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है 10 टाइम हेलो वर्ड। ओके, 10 टाइम्स मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं करना है, आप बोलोगे एक के नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना है, राइट। हमें इतना पता है कि हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करते हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल से कि हम एक के नीचे एक 10 बार हेलो वर्ड लिख देंगे। सो आई विल राइट प्रिंट एंड हियर आई विल राइट हेलो वर्ड। ओके,
हमारा हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट प्रीव्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड लिखा है और इस तरह से। अब यही जो हेलो वर्ड है मैं 10 टाइम्स लिख दूंगा तो मेरा 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। बराबर है, समझ में आ रहा है? क्लियर है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? अगर मुझे 10 टाइम्स हेलो हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लाइन लिखा है, यही लाइन में कितनी बार रिपीट करूंगा? 10 टाइम्स। समझ में आ रही है बात गाइस? हेलो, आर यू गेटिंग दिस? क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। तो अगर मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना, हम 10 बार लिख देंगे। बट अगर यही मुझे 10 टाइम नहीं लिखना है, यही मुझे लेट्स टेक 1000 टाइम लिखना है या फिर 100 टाइम्स लिखना है, ओके, तो आप कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं करोगे। यू विल नॉट डू कॉपी पेस्ट। अगर यही नंबर और बढ़ जाता है, सपोज यू हैव टू डू मोर, अगर आपको 1000 बार लिखना है तो कॉपी पेस्ट करोगे? इतना लिखोगे? ओके, आप बोलोगे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बट आपका जो प्रोग्राम है ना उसकी साइज बढ़ती जाएगी अगर आप रिपीटेड जो है वो रिपीटेड कोड लिखते हो। रिपीट यानी आपने एक लाइन लिखी है और यही लाइन आप बार बार लिख रहे हो, यू आर राइटिंग द सेम लाइन अगेन अगेन, इट इज नॉट एडिंग एनी न्यू फंक्शनैलिटी। जब न्यू फंक्शनैलिटी कोई लाइन ऐड करती है तो वो चाहिए होती है। समझ में आ रहा है? आप सेम लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो आप ये रीजन से क्या होगा, अगर आप रिपीट करते हो कोड, अगर आप रिपीट करते हो, इफ यू गो फॉर रिपीटेशन, अगर आप रिपीट करते हो कोड तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज बीइंग अराइजेस व्हेन यू रिपीट द कोड? रिपीट कोड से क्या होता है, आपका प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है, योर प्रोग्राम विल गेट बल्कि, या आपका प्रोग्राम जो है वो बल्की हो जाता है। बल्की का मतलब क्या है? आपने ऐसे लाइन ऑफ कोड लिखे हैं जो कि रिपीटेडली लिखे हुए हैं और उससे आपका प्रोग्राम का साइज जो है वो बढ़ रहा है, योर साइज इज गेटिंग बल्कि। अगर आप रिपीट नहीं करते, हो सकता है कि अगर आपने रिपीट नहीं किया होता तो आपका जो साइज है वो कम रहता, योर साइज विल बी लाइक दिस, ओके, इट विल नॉट बल्कि। अब आप बोलोगे कि बल्कि होने से क्या प्रॉब्लम है? ओके, हमारे पास बहुत सारी मेमोरी स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम कोड लिखते हैं तो जितना आपका प्रोग्राम कम होगा, ओके, जितना आपका प्रोग्राम कम होगा उतना वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? जितना जितना कम लाइन ऑफ कोड होगा उतना वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा। इसलिए ओके, इसलिए प्रोग्रामिंग में हमेशा ध्यान में रखना, लेस इज मोर। लेस इज मोर, लेस इज मोर का मतलब ये है कि आप जितना कम लिखोगे, कौन सा अल्गोरिदम है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स है, कौन सा अल्गोरिदम है जो कि अच्छा माना जाता है, जो कम से कम लाइन ऑफ कोड में लिखा जाता है वो अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप रिपीटेडली करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो बल्कि हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम रिपीटेडली कोड नहीं लिखेंगे। यू आर वेस्टिंग द टाइम एज वेल। अगर आप रिपीटेडली कोड लिखोगे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। सो ऑलवेज गो फॉर रीयूज, रिपीट नहीं करना है, वी डोंट हैव टू रिपीट। रिपीट नहीं करना है, व्हाट वी हैव टू डू गाइस? रिपीट नहीं करना है तो क्या करना है? यस, रीयूज करना है। समझ में आ रहा है? यूज करें। बराबर, रिपीट नहीं करना है, रीयूज करना है। जैसे हमने अब इनहेरिटेंस देखा तो इनहेरिटेंस में आप कोड रीयूज करते हैं, फंक्शंस देखा तो फंक्शन में हम कोड रीयूज करते हैं। आगे जाके देखेंगे सारे टॉपिक, बट अभी ध्यान में रखने कि हमें कोड जो है वो रिपीट नहीं करना। तो लूप होता क्या है? लूप यही होता है कि अगर हमें कोई काम, इफ यू वांटेड टू डू सम टास्क रिपीटेडली, ओके, यू विल नॉट राइट इट अगेन एंड अगेन, आप उसको बार बार लिखोगे नहीं। व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ लूप, आप एक लूप क्रिएट कर दोगे। व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ लूप। अब लूप के अंदर क्या करोगे, जो भी काम आपको करना है, व्हाट एवर द टास्क यू हैव टू डू, वो इस लूप को दे दोगे। समझ में आ रहा है? आप क्या करोगे, बार बार टास्क, बार बार वही लाइन नहीं लिखोगे, तो आप करोगे क्या, आप एक लूप बना दोगे, यू विल क्रिएट वन लूप, ओके, और इस लूप के अंदर आपका जो भी टास्क है वो इस लूप को दे दोगे और इस लूप को बार बार चलाते रहोगे। समझ में आ रहा है? इस लूप को बार बार जो है वो चलाते रहोगे जब तक आपका काम जितने बार आपको करना है उतने बार होने जाता। तो आपने एक लूप क्रिएट कर दिया, सपोज दिस अवर लूप, और लूप का मतलब ये होता है जो चलता रहता है। तो आप एक लूप क्रिएट करोगे और उस लूप को आप अपना टास्क दे दोगे, जो भी आपको करना है, और टास्क आप एक ही बार स्पेसिफाई करते हो, बार बार नहीं करोगे। आप एक लूप क्रिएट करके उसको अपना टास्क दे दोगे और अब ये लूप जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आपको काम करके देता रहेगा। जैसे समझते हैं, सपोज हमारा लूप, मैं बोलता हूँ एल, एल की वैल्यू है 1, है ना? हमने ये एल चलाया, 1 to 10 चलाया हुआ है, ठीक है, हमने 1 to 10 लूप चला हुआ है, 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है। लूप में ये टर्मिनोलॉजी होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, लूप तो स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट करते हैं हम लूप, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं गाइस? इनिशियल। समझ में आ रहा है? जहां से हम लूप स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यस गाइस, जहां से हम लूप स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं?
गाइस एवरीवन, Initialization. यानी कहाँ से लूप स्टार्ट करना है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? यस, कहाँ पे एंड करना है, बराबर है, समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? लूप में 3 टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइज कहाँ से स्टार्ट करना है, टर्मिनेट कहाँ पे करना है, कहाँ पे हर, ये जो टर्मिनेशन वाली है ना, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लूप चलाते हैं तो हमें वो लूप एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट बार चलता रहेगा, तो हमें इनफाइनाइट लूप नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें एक पॉइंट पे जाके उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है टर्मिनेशन, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट, प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, बहुत ईजी है वैसे। आपका लूप जो है वह कब खत्म होता है? आपका लूप कब खत्म होता है? आपका लूप तब खत्म होता है जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी। जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी तब आपका लूप खत्म होगा। अब ये समझ नहीं आ रहा क्या होता है। यहाँ पे सपोज हम स्टेयर वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो वी हैव स्टेयर्स, ठीक है। तो ये मेरा स्टेयर नंबर 1 है, ये मेरा स्टेयर नंबर 2 है, ये 3 है। ओके, सिमिलरली 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे जाना है, इस 7 नंबर पे जाना है, तो ये 7 क्या हो जाएगा मेरे लिए? टर्मिनेशन। टर्मिनस हो जाएगा, राइट गाइस, ये मेरा एंड हो जाएगा, सो आई विल राइट एंड। समझ में आया? मुझे अब मैं स्टेयर्स चढ़ना चालू करूंगा तो मैं फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बराबर। समझ में आ रहा है गाइस? गाइस एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा? कैन वी से इट इज माय इनिशियलाइजेशन? यस यस। एवरीवन, समझ में आ रही है चीज? ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ोगे। आप सबसे पहले पहले पॉइंट पे आया, फिर आप दूसरे, अब जैसे आपने खुद को इंक्रीमेंट किया, ध्यान देना, आपने खुद को इंक्रीमेंट किया, जैसे ही आपने खुद को इंक्रीमेंट किया तो इनिशियलाइज की वैल्यू यहाँ से हटके क्या होगी? ये होगी। ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं गाइस एवरीवन? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप जब आपने खुद को इंक्रीमेंट किया तो आप जहां पे इनिशियलाइज की वैल्यू थी, आप पहले 1 पे थे, अब 2 पे आ गए, तो इनिशियलाइज की वैल्यू क्या होगी? 2। समझ में आ रहा है क्या? बोल सकते हैं ऐसे एवरीवन गाइस? ऐसा बोल Yes, sir. सकते हैं। फिर आप थर्ड इस पे जाओगे तो इनिशियलाइज की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर फोर्थ इस पे जाओगे तो इनिशियलाइज की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर फिफ्थ इस पे जाओगे तो इनिशियलाइज की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर सिक्स इस पे जाओगे तो इनिशियलाइज की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे आगे जहाँ पे आपको पहुंचना था, समझ में आया? आप वहां पे आके जहाँ पे आपको पहुंचना था, तो यही मैं बोल रहा था, ये वाली केस, कि जहाँ पे आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू, जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? एंड की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो आपका लूप क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब आप इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन की वैल्यू पहुंच जाते हो, जब इनिशियलाइज जहां से किया है और टर्मिनेट जहां पे करना है वो दोनों सेम हो गए, आप पहुंच गए वहां पे, ऊपर आपको पहुंचना था, आप पहुंच गए, तब आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात गाइस? फास्ट तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है यस एवरीवन? सर। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपने खुद को Yes, क्या sir. किया? आपने खुद को यहाँ पे क्या किया? इंक्रीमेंट किया। क्या मैं बोल सकता हूँ आपने खुद को यहाँ पे प्लस प्लस किया? बोल सकते हैं ऐसे? यस गाइस, यस। कि आपने खुद को प्लस प्लस किया। वेरी गुड। ये हमने देखा है, हाँ, सारे चीजें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि पाइथन पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें एक और बार रिपीट होगी तो अच्छा होगा। वाइस वर्सा। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे और स्टेज बना लेता हूँ। आई विल क्रिएट अनदर स्टेयर्स, ठीक है। अब ये मेरे पास ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, आई वॉन्ट टू गो हियर, तो ये मेरा हो जाएगा एंड, ठीक है। ये मेरा हो गया एंड। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, अब मुझे ऊपर से नीचे जाना है, बराबर, तो ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रही है बात गाइज? समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, अब मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा? खुद को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, बराबर है, मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा ना खुद को। समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले मैं इनिशियलाइज यहाँ पे हूँ, फिर मुझे खुद Yes, sir. को डिक्रीज करना पड़ेगा, 5 पे आऊंगा, फिर खुद को डिक्रीज करना पड़ेगा, 4 पे आऊंगा, फिर खुद को डिक्रीज करना पड़ेगा, 3 पे आऊंगा, फिर डिक्रीज करना पड़ेगा, 2 पे आऊंगा, फिर डिक्रीज, जैसे ही मैं 1 पे आ गया, आ गई ये केस।
होगी केस जहां पे जो मेरा एंड है, ओके, वो इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियलाइज। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऐसा होता है तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स व्हाट आई हैव सेड, मैंने ये बोला कि अगर आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी तो आपका लूप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गाइस एक बार कंफर्म कर दो आप समझ में आया इतना, तो मैं आगे बढ़ूँ। Yes, sir. सबको समझ में आया? डू हैव एनी काइंड ऑफ इशू? तो सबसे पहले हमने देखा कि लूप क्यों यूज करते हैं। तो हमने देखा कि आपका परफॉर्म अगर आपका प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है तो वो बल्कि हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, आपको आपका टाइम वेस्ट होगा, आप इतना टाइम उसमें लगा रहे हो सेम कोड लिखने में, स्लो हो जाएगा आपका प्रोग्राम। तो वो करने के लिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम कोड को रिपीट नहीं करेंगे, रीयूज करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा। फिर लूप हमने देखा कि अगर कोई भी काम हमें रिपीटली करना है तो वी आर गोइंग टू यूज अ रीयूजेबिलिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। तो लूप क्रिएट करेंगे, लूप को क्या दे देंगे, हमारा जो भी काम है, जो भी टास्क हमें करना है वो उसको दे देंगे, और लूप को बोलेंगे कि तेरे को इतने बार चलना है। तो लूप जब भी हम बोलते हैं कि लूप को 10 बार चलाना है तो लूप बोलता है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इसलिए हमारा सबसे पहले लूप के अंदर सबसे पहले टर्म होता है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है टर्मिनेशन, ओके, और होता है इंक्रीमेंट। ये होता है इंक्रीमेंट, या फिर इसमें डिक्रीमेंट भी होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने एग्जांपल देखा स्टेयर से कि इंक्रीमेंट कैसा होता है, लूप हमारा कब खत्म होता है, जैसे 1 2 3 4 स्टेयर लिए तो 1 से एंड तक जाना है, तो जैसे जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सेम वे हमें अगर डिक्रीमेंट करते यानी रिवर्स आना है, ऊपर से नीचे आना है, तो हमने यहाँ पे मेरा इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना है तो मैंने खुद को माइनस माइनस किया, तो मैं तो यहाँ पे फिर से एक कंडीशन आ गई जहाँ पे इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच गई तो लूप खत्म हो गया, ओके। तो ये होता है चीज, इस तरह से लूप जो है वो वर्कआउट करते हैं। अब हम आते हैं फॉर डिस्कसिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप। तो पाइथन के अंदर कितने टाइप ऑफ लूप है हमारे पास, हाँ, लूप्स, लूप्स इन पाइथन। तो पाइथन जैसे हमने जावा में देखा था फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, राइट। बट पाइथन में कितने लूप होते हैं? पाइथन में फॉर लूप होता है, ओके, एंड व्हाइल लूप होता है। पाइथन के अंदर डू व्हाइल लूप नहीं होता। पाइथन वी डोंट हैव अ डू व्हाइल लूप। सबसे पहले फॉर लूप होता है, सबसे पहले ये होता है फॉर लूप, एंड सेकंड होता है व्हाइल लूप, ठीक है। सो इन पाइथन वी डोंट हैव अ लाइक अ डू व्हाइल लूप। तो पाइथन में जो कोड है, पाइथन में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। अब हमें पता है कि एवरी लूप में 3 टर्म आती है, एवरी लूप हैव अ 3 टर्म्स, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉर लूप। लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर लूप, ओके। इसमें ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं होता है, ठीक है। सो विल राइट फॉर, सबसे पहले लिखना पड़ता है हाउ टू राइट अ फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, ओके, फॉर आई इन रेंज। तो मैंने जैसे बताया आपको एक लूप के अंदर 3 टर्म होती है, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है फॉर आई इन रेंज। ये आई क्या है? इट इज जस्ट अ वेरिएबल। ये जो आई है ये जस्ट अ वेरिएबल है, जैसे हम वेरिएबल लेते हैं, ये जस्ट वेरिएबल है। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, बट नंबर नहीं लेना है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में है। आपको पता है कि वेरिएबल का नेम क्या नहीं लेना है। तो ये जस्ट अ वेरिएबल, यू कैन टेक अ वेरिएबल एनीथिंग, ये जस्ट वेरिएबल है। सो वी हैव रिटन फॉर आई इन रेंज, पैरेंथेसिस, यहाँ पे खोलना है पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमें 3 टर्म देनी पड़ती है। सबसे पहले देना पड़ता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा देना पड़ता है एंड या फिर टर्मिनेशन, और तीसरा देना पड़ता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके। तो ये 3 चीजें पैरेंथेसिस के अंदर दी है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कॉमा, एंड और टर्मिनेशन, थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये 3 चीजें इसके अंदर देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। For I in range, initialization, termination, increment and decrement, colon. Here we have to again write a colon. जैसे कोलन लगा के आप हिट एंटर करोगे तो आप यहाँ पे आपको इंडेंटेशन के अंदर आ जाओगे, और जो भी काम आपको करना है टास्क, सो यू हैव टू राइट इट हियर। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? कैसे लिखते हैं फॉर लूप? फॉर आई इन रेंज, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? हाउ टू राइट अ फॉर लूप, बताइए कि कैसे लिखते हैं फॉर लूप इन पाइथन? For I in range, initialization, termination, increment, decrement. यस वेरी गुड, रिमेनिंग बोलो साथ में।
यस गाइस, हाउ टू राइट अ फॉर लूप इन पाइथन? बोलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। हाउ टू राइट अ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। बताइए गाइस जल्दी। For I in range initialization, termination, increment and decrement. यस, दो ही लोग हैं क्लास में, कितने हैं बताइए सब आंसर जल्दी जल्दी बोलो। कैसे लिखते हैं फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट? बोलो जल्दी, इतना टाइम मत लो। For I in range, initialization, termination, increment, decrement. ऐसा चिल्लाने के बाद ही आंसर आता है, नहीं चिल्लाना जरूरी है। ऐसा बात किया करो ना, आंसर दिया करो जल्दी जल्दी, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और इसके अंदर आता है आपका टास्क, जो भी टास्क आपको करना है रिपीटेडली। आप यही, अब यही जो लाइन है ना, ये बार बार यूज होगी रिपीटेडली। यही लाइन आपकी जो है वो यूज होगी, बार बार आप नहीं लिखोगे 10 बार, यही लाइन आपकी यूज होती है। अब आते हैं हाउ वी कैन राइट अ फॉर लूप इन एक्चुअल आईडीई। अब इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर लूप। असाइनमेंट नंबर मैंने 2 असाइनमेंट दे रखे हैं, उसमें से बहुत कम असाइनमेंट आपने सबमिट किए हैं, पता है। 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, आप उसमें से बहुत कम लोगों ने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करे हैं। सो इट इज नॉट गुड गाइस, फॉर एटलीस्ट यू, आपके लिए ही सही नहीं है ये। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, आपके उसके ऊपर कमांड आएगी कि कैसे लिखते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करिए डेली, जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं वो सबमिट करो। Okay, so we will come in IDE and we will try to solve work out with the for loop, and let's see how we can solve some problems. Okay, तो ये एग्जांपल्स जो है हमने लास्ट टाइम देखे थे, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। Okay, so here we will write a for loop. So first question I will try to solve. मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ड 10 टाइम। ओके, फाइन। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ड 10 टाइम्स। अब मुझे 10 टाइम्स लिखना है, मुझे 10 टाइम लिखना है, मुझे पता है 10। अच्छा, एंडिंग वो दे देगा आपको, 10 टाइम करना है ना, वो बोलता है 10 टाइम। तो आपको मिल गया एंडिंग पॉइंट, मिल गया, तो आपको एंड पता है, एंड मुझे 10 पे करना है, राइट। एंड तो मिल गया, इन आपको 10 टाइम बोला तो 10 यानी एंड बोल दिया उसने कि 10 टाइम्स करना है, यानी एंड मिल गया आपको, या फिर टर्मिनेशन मिल गया। इनिशियलाइजेशन क्या कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन कर देते हैं 1 से 10 तक जाते हैं, और इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस, है ना। फिर हम कर देंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। 1 से इंक्रीमेंट है ना, सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 6 7, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट प्लस वन से क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आता है हाउ टू राइट दिस सेम प्रोग्राम। सो आई विल राइट फॉर, ओके, फॉर आई इन रेंज। ओके, सबसे पहले लिखना है फॉर आई इन रेंज, पैरेंथेसिस। सबसे पहले इनिशियलाइज करता हूँ 1, 1 से इनिशियलाइज करते हो गया इनिशियलाइजेशन। टर्मिनेट करना है 10 पे, कर दिया टर्मिनेशन 10 पे, और इंक्रीमेंट बाय 1। सो 1 इज इनिशियलाइजेशन, 10 इज टर्मिनेशन, 1 इज इंक्रीमेंट। ओके, सो कोलन लगाना, जैसे कोलन लगाओगे हिट एंटर, तो जैसे आपने कोलन लगा के हिट एंटर किया, आपको एक इंडेंटेशन देखने को मिलेगा, यू कैन सी सम इंडेंटेशन हियर। ओके, तो ये होता है आपका इंडेंटेशन। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे कोलन, जैसे कोलन लगाओगे वहां वहीं पे एंटर कर देना, आपको एक इंडेंटेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, हियर आई विल प्रिंट हेलो वर्ड। ओके, हेलो वर्ड। ओके, तो 10 टाइम हमारा हेलो वर्ड प्रिंट होके आना चाहिए, राइट। 10 टाइम हेलो वर्ड हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। अब ये हमारा देखो कितने बार हेलो वर्ड प्रिंट, यहाँ हियर वी कैन सी हेलो वर्ड, काउंट करते हैं। सो हियर इज 3, 3 and 3 6, and 6 and 3 9, so we are getting 9 times hello world। so यहाँ पे ये 3 है, 3 and 3 6 and 3 9, but we wanted to print 10 times ना, हमने तो 10 टाइम्स दिया है। यहाँ पे फोकस करना,
फोकस करने वाली बात ये है कि जो भी आप टर्मिनेशन देते हो इन पाइथन, ओके ओके, सो इन इन पाइथन जो भी आप टर्मिनेशन देते हो वो टर्मिनेशन तक पहुंचता नहीं है, वो टर्मिनेशन तक रीच नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है बट इतना कंफ्यूजन होगा नहीं। थोड़ा फोकस करना, मेरी बातों पे फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, टर्मिनेशन 10 दिया है, बट वो 10 तक नहीं जाता। जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे दी है ना टर्मिनेशन, उसके लेस देन जाता है, लेस देन 10 जाता है। अगर आपने 100 दिया, अगर आपने टर्मिनेशन जो है 100 दिया, तो 100 टाइम नहीं जाएगा, वो लेस देन 100 जाएगा, और लेस देन 100 का मतलब होता है 99 टाइम जाएगा। समझ में आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? क्या बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टर्मिनेशन है ना, जो आप जो टर्मिनेशन देते हो वहां तक नहीं जाता है। आपने 10 दिया तो लेस देन 10 यानी ये चलता है 9 टाइम। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? तो टर्मिनेशन यस जो है सर। वो इंक्लूड नहीं होता है, वो एक्सक्लूडिव होता है। एक्सक्लूडिव का मतलब क्या है कि वहां तक जाता नहीं है वो। ऐसा समझो कि जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आपने ऑटो किया, ठीक है, और आपने उसको बोला कि मुझे बजाज नगर जाना है, ओके, बजाज नगर। तो ये हमारा एंड हो गया, तो ये आपका एंड हो गया, और ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। ऑटो में जहाँ से आपने पकड़ा वहां से आपका इनिशियलाइज हो गया, ये आपका इनिशियलाइज। आपका एंड तो यहाँ पे करना था ना, बट वो क्या करता है, आपको बीच में उतार देता है। वो जहां तक बजाज नगर है वहां तक आपको छोड़ता ही नहीं, वो क्या करता है बीच में आपको यहीं पे कहीं पे कर देता है, यहाँ पे टर्मिनेट, या फिर यहीं पे कहीं पे आपको उतार देगा। तो वो होता है क्या, जो आपको जहाँ पे आपने डेस्टिनेशन बताया उसको पहले ही वो छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेशन में ऐसा होता है कि जो आपने लोकेशन बताया, जो नंबर बताया उसके लेस देन चलता है। 10 दिया तो 9 टाइम चलेगा, अगर आप 100 दोगे तो 99 टाइम चलेगा, अगर आपने 101 दिया तो वो चलेगा 100 टाइम। समझ में आया? इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो 9 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आप देते हो टर्मिनेशन वहां तक वो जाता नहीं है, उससे एक पॉइंट कम जाता है, एक नंबर उससे कम जाता है। इसलिए हमारा जो है वो आउटपुट 9 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हमें मुझे बताओ, अगर मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है हेलो वर्ड, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? व्हाट आई वांट टू डू 10 टाइम्स प्रिंट करना है? यस गाइस, 11। 11 करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट आई विल जस्ट पुट 11। तो 11 का लेस क्या होता है 10, तो 10 टाइम हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? कैसे प्रिंट होता है हेलो वर्ड? अभी हमारा 10 टाइम्स प्रिंट हुआ, अगर हम इसको रन करें, अभी अभी काउंट करते हैं, लेट्स काउंट इट राइट नाउ। तो यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 4 8 एंड 2 10, तो 10 टाइम्स हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। अगर मुझे 100 टाइम करना है तो मुझे पता है 100 दूंगा तो 99 टाइम चलेगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 101, तो मैं यहाँ पे 101 दे दूंगा तो यहाँ पे 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हेलो ये जो है वो प्रिंट होता है। अब हम लूप को समझते हैं, मैं 6 टाइम चलाता हूँ, 6 लिखा है मैंने, 5 टाइम चलेगा। जो हर लूप होता है वो लूप चलता कैसे है, हमारा आउटपुट किस तरह से आता है, तो स्टेप्स ध्यान में रखना। सबसे पहला होता है आपका इनिशियलाइजेशन, सबसे पहली बार होता है आपका स्टेप्स बता रहा हूँ लूप कैसे चलता है। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन चेक होती है, ओके, थर्ड आपका काम होता है, और फोर्थ क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। समझ में आ रहा है? सो टू फर्स्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन, सबसे पहला क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। दूसरा कंडीशन चेक करता है, तीसरा काम करता है, और चौथा आपका इंक्रीमेंट होता है। ध्यान देना लूप कैसे चलता है, यही एग्जांपल से समझाता हूँ कि लूप कैसे चलता है। देखो, जैसे ही एक बार इनिशियलाइज हो गया, तो इनिशियलाइज जो है वो बार बार नहीं होता है, इन ओनली वन टाइम होता है। जैसा इनिशियलाइज हो गया तो ये वन रेस से बाहर हो जाता है, वन फिर पार्ट नहीं होता आपका लूप का। जैसे एक बार लूप ने इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद में वन का कोई पार्ट नहीं रहता है। फिर लूप आपका चलता है कैसे, 2 से 3 पे आता है, ध्यान देना किस तरह चलता है। 2 से 3 पे आएगा, राइट, 3 से फिर 4 पे आता है, ओके, फिर 4 से फिर से 2 पे आएगा, फिर से 2 से 3 पे आएगा। तो यहाँ पे आपको लूप चलता है 2 से, लूप कैसे चलता है, 2 से 3 आता है, 3 से 4 आता है, फिर 4 से कहाँ पे आएगा, फिर से 2 पे आएगा, फिर 2 से फिर से 3 पे आएगा। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? तो आपका लूप चलता है 3 2 3 4, ये चलेगा, फिर 2 3 4 2 3 4, फिर से 4 से 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर 2 3 4, ये चलता रहेगा। यानी 2 पे आया फिर 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, फिर से 3 पे आएगा। इस तरह से आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। तो इसको देखते हैं किस तरह से लूप जो है हमारा चलता है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, यानी इनिशियलाइज हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ रहा है गाइज?
आर यू गेटिंग दिस? ये लूप किस तरह से चलता है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ, ये समझ में आया लूप किस तरह से चलता है? 2 3 4 बताइए, समझ में आया? Yes, sir. Yes? सबसे पहले 1 पे आया तो 1 पे आपका इनिशियलाइज हो गया, फिर 1 से कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा। मुझे बताओ 2 पे क्या करता है? कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे क्या ट्रू है? ये क्या है? इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? क्या 1 लेस देन 6 है? क्या ट्रू है? ये 6 टर्मिनेशन है ना, राइट? इट इज अ एंड। तो मुझे बताओ क्या 1 लेस देन 6 है? ट्रू है या फॉल्स है? गाइस यहाँ पे देखना, क्या 1 लेस देन 6 है? आई की वैल्यू 1 है ना, 1 हो गया, 1 से 2 पे आया, 2 पे आया, 1 से यहाँ पे 2 पे आया। बताओ क्या आपका 1 लेस देन 6 है? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए फर्स्ट। ट्रू है, True. राइट? जैसे ट्रू हो जाएगा फिर अंदर आएगा। 2 से कहाँ पे आएगा? 3। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 से 3 पे आएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 पे आएगा, 3 से 4 पे आएगा, राइट? 4 से फिर से 2 पे आएगा, ठीक है? इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है? 2 3 4 तो 1 हो गया इनिशियल। उसके बाद में 1 जो है वो रेस का पार्ट नहीं रहेगा। फिर 2 पे आया, चेक किया क्या 1 लेस देन 6 है? ट्रू है। फिर 2 से 3 पे आएगा, 3 पे आया, क्या किया? हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे एक हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। फिर 3 से कहाँ पे जाएगा? मुझे बताओ, 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 पे जाएगा गाइज, हेलो? 3 से 4 पे जाएगा, यस 3 से 4 पे जाएगा। 4 पे क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। तो इंक्रीमेंट 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज? Yes, sir. समझ में आ रहे हैं? अब 4 से 2 पे गया, समझ में आ रहा है? सबसे पहले 2 से 3 गया, काम किया, फिर 3 से 4 गया, इंक्रीमेंट किया। अब 4 से कहाँ पे जाएगा? 3 पे. 2 पे जाएगा। 4 से 3 पे नहीं जाएगा बाबा, 2 पे. 4 से 2 पे जाएगा। 4 से कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा। मुझे बताओ, फिर चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 6? ट्रू है क्या? क्या 2 लेस देन 6 है? Yes, sir. यस। फिर से 2 से 3 पे आएगा, जैसे ही ट्रू होगा तभी 3 के पास में आएगा, 3 पे आएगा, एक और बार हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 पे जाएगा। तो 4 पे क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। तो 2 से ये इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी 3। फिर 4 से 2 पे आएगा, चेक करेगा 2 3 4, ये ध्यान में रखना 2 3 4 चलता है। फिर 4 से 2 पे आया, चेक किया क्या 3 लेस देन 6 है? हाँ 3 लेस देन 6 है। फिर से 3 के पास में आएगा, हेलो वर्ड प्रिंट करके, तो एक और बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट? फिर 3 से 4 पे आएगा, 4 पे करेगा इंक्रीमेंट, तो एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन 6, हाँ ट्रू है, अंदर आएगा। फिर से 3 पे आएगा, तो एक और बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट? अब 3 से 4 पे आएगा, यानी इंक्रीमेंट कर गया, तो 4 से 5 इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर 4 से 2 पे आएगा, क्या करेगा? चेक, तो 5 इज लेस देन 6, ट्रू है, 5 इज लेस देन 6 गाइस, राइट? ट्रू है, अंदर आएगा, एक और बार 3 पे आके हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। फिर 3 से 4 पे जाएगा, क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, यानी आई की वैल्यू होगी 6। और अब इंक्रीमेंट करने के बाद चेक किया क्या 6 इज लेस देन 6 गाइस, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, क्या 6 इज लेस देन 6? ये 6 क्या लेस देन 6 है? 6 लेस देन 6 होता है क्या? बताइए। False. नहीं है ना? तो यहीं पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया, और यहीं पे जो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। समझ में आ रहा है? और आपका आउटपुट कितने में आ रहा है? ये 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह से आपका लूप चलता है, ठीक है? अब आपको नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड पुट द आउटपुट इन द ग्रुप, या फिर सबसे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चंस है, इट इज नॉट दैट हार्ड क्वेश्चंस। हाँ गाइस, बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी। लूप चलता कैसे है वो समझ में आना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें इजी है। और थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करो क्लास के अंदर, बस सुनते रहते हो। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन मुझे करना है, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। मुझे नंबर प्रिंट करना है। आई वांटेड टू प्रिंट, ओके, प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10। मुझे 1 to 10 जो है नंबर प्रिंट करना है। कैसे कर सकते हैं गाइस? हाउ वी कैन प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10? तो मुझे एंड दे दिया है, 1 to 10 करना है, तो यहाँ पे टर्मिनेशन में मैं 10 डाल देता हूँ। 1 to 10 करना है ना,
और इनिशियलाइज भी दिया है 1 से करना है 1 to 10, तो मैं यहाँ पे 1 दे दिया। फिर से एक बार लिखते हैं। सो आई विल राइट फॉर, ओके, फॉर आई इन रेंज। हमारा क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, ठीक है। उसने बोला है कि नंबर प्रिंट करना है 1 to 10, तो 1 to 10 करना है, 1 मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा, 10 करना है तो 10 मेरा टर्मिनेशन हो जाएगा, बट मैं 10 नहीं लिखूंगा, अगर 10 लिखूंगा तो 9 टाइम आउटपुट आएगा, इसलिए मैं 11 लिखता हूँ और इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं, कोलन हिट एंटर। ओके, सो 1 मेरा इनिशियलाइज हो गया बिकॉज 1 से मुझे प्रिंट करना है 10 तक, 10 मेरा हो गया टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन अगर मैं 10 देता हूँ तो 9 तक चलेगा, इसलिए मैंने 11 दिया और इंक्रीमेंट बाय 1 किया। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा, मैं प्रिंट ही कर दूंगा आई, क्योंकि आई की वैल्यू ही इस रेंज में आएगी। आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगी आई की वैल्यू, इसलिए मैं आई को ही इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा, तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 to 10 जो है आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है गाइस, एवरीवन, समझ में आ रही है चीजें? Look at Yes, sir. सब एवरीवन, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आई की वैल्यू ही Yes, sir. 10 तक जाती है, राइट, तो हमने आई को ही प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे आई यानी आई 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। ओके, सो प्रिंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट द टेबल ऑफ 2, ठीक है। तो टेबल ऑफ 2 कैसे प्रिंट कर सकते हैं, यही करेंगे, बट यहाँ पे करेंगे 2 इंटू आई कर देंगे, 2 इंटू आई यानी, सो सबसे पहले 2 इंटू 1 यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 3, फिर इस तरह से 2 4 6 8 10 इस तरह से प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9 20। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बताइए समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट, अब आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व द क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1। चलो चालू हो जाओ, सॉल्व द क्वेश्चंस एंड पुट द आउटपुट इनटू द ग्रुप। अब ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओके, तो क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस गाइस फॉर यू, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो चालू हो जाओ। सबसे पहले 1 to 10 प्रिंट करो, फिर टेबल ऑफ 2 प्रिंट करो, देन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1, देन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, चालू हो जाओ गाइस, गो स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन, ऑड number from 1 to 20, write a program to calculate the sum of numbers from 1 to 100, write a program to calculate the sum of even number from 1 to 20, write a program to print the sum of odd number from 1 to 20। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, हाउ मेनी टाइम वी हैव, ओके वी हैव 10 minutes, so in 10 minutes as much question you can solve, it is good। so start with print the number from 1 to 10, then print the table of 2, write a program to print the number of 10, print the number from 10 to 1, then even number print करना है from 1 to 20, even number पता है हमें, if number modulo 2 equal to 0 it is a even, ठीक है। Then write a program to print the odd number from 1 to 20, write a program to calculate the sum of number from 1 to 100, sum calculate करना है सबका। Then write a program to calculate the sum of even number from 1 to 20, then write a program to print the sum of odd number from 1 to 20, ठीक है। बहुत easy क्वेश्चन है guys, it is very easy question, we have did in Java a lot of practice questions। start your practice, take one by one questions, solve it and put the output into the group।